Yes, good morning, students. Again, same chapter, coordinate geometry. I am taking few questions of this chapter. The topic is how we plotting the points in the plane if the coordinates are given. अगर आपको coordinates दे रखे होंगे तो हाउ यू विल प्लॉट द पॉइंट्स। कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं एक कार्टेशियन प्लेन में। आज फिर से वही चैप्टर ले रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे हम। एंड आई एम टेकिंग योर exercise 3.3 first question I am taking now. In which quadrant, exercise 3.3, your first question is in which quadrant or in which axis do each of the points, मैं यहां पर points लिख रही हूं, -2 and 4, ये first coordinate है। second है 3 and -1, 3 and -1, and the next one is -1, 0, and next one is 1 and 2, and the next is -3 and -5 like. Verify your answer by locating them in the Cartesian plane. Yesterday I tell you about the perpendicular lines which meet at one place, that is called the origin, and the right hand side shows the positive sign on the x-axis and left hand side shows the negative sign, and upper side, this is your y-axis, upper side shows the positive points and lower side shows the negative points. And how you will write the points here? First I am writing here positive sign you have to, आपको यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखने, और लेफ्ट हैंड साइड पर कैसे नंबर लिखने हैं? नेगेटिव नंबर्स यू हैव टू राइट। एंड वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव, और स्टार्ट कैसे करना है? 0 के बाद 1, यहाँ भी 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर स्टार्टिंग पर -1। कुछ बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, -1, -2, -3, इस तरह से लिखना, इस तरह से आपने नहीं करना है। और राइट हैंड साइड पर 0 के बाद 1, 2, 3, 4 इधर पॉजिटिव, और लोअर पार्ट में इधर हमारे कौन से साइन आएंगे? नेगेटिव साइंस। Now how we plot these points or in which quadrant these points lie, आपको ये देखना है। तो first one is -2 and 4. -2 is the x coordinate and 4 is the y coordinate. -2 is negative, x axis पर नेगेटिव साइड में, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और 4 is the y coordinate, it goes on the upper part, y is positive here, so -2 and 4. I am locating here -2, this is -2 and 4, -2 and 4, okay. The next one is, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई किया आपका -2 और 4? This is your second quadrant, and this is your first quadrant, or this is your third quadrant, and this is the fourth quadrant. तो in which quadrant or in which axis these points lie, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। So 3 and -1, 3 is the x coordinate and -1 is the y coordinate. 3 is positive and -1 is negative, -1. This is the y coordinate, so it lies in the fourth quadrant. Your second जो क्वेश्चन दे रखा था, सेकंड पार्ट जो दे रखा था, सेकंड पॉइंट जो दे रखा था, that lies in the fourth quadrant. And next one is -1 and 0. -1 is the x coordinate and 0 is y coordinate.
so it lies on the x-axis. On the x-axis y is 0. मैंने कल भी आपको बताया था कि x-axis पर y 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y-axis पर x is 0. ओके, तो ये है आपका -1 और 0. And next one is 1, 2. 1 is the x coordinate and 2 is the y coordinate. Both are the positive sign. So 1 and 2. It lies here. 1, 2. यहाँ पर मैंने ये डॉट डाल के ऊपर सर्कल बना दिया है. It lies here. So it lies 1, 2 lies in the first quadrant. And the next is -3, -5. -3 is the x coordinate and -5 is the y coordinate. So -3 and -5, it lies in the third quadrant. -3, -5. -3 is your x coordinate and -5 is the y coordinate. So it lies in the third quadrant. The first one lies in the second quadrant. Second, 3, -1, it lies in the fourth quadrant, and -1, 0, it lies on the x-axis. And 1, 2, it lies in the first quadrant, because in the first quadrant both are the positive sign. X भी positive होता है और y भी positive होता है. And in the second quadrant में आपका x negative होता है और y positive. And in the third quadrant, x is also negative and y is also negative. First you have to take the x coordinate, then you have to take the y coordinate. And in the fourth quadrant, first x is positive and y is negative. So here the plus and minus sign, here plus plus, and here minus and plus, and here both the minus sign, x and y, because in the third quadrant both are the negative. So this is the first question of your 3.3 exercise. Second question you will try it yourself. I am taking some extra questions of this chapter. अगर आपको ये बताना आ जाए कि पॉइंट्स प्लॉट करके ये बताओ कि कौन सी फिगर बन रही है, तो आप कैसे बताएंगे? पहले एक सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन note down these questions in your notebook. One, 3. Plot these points and check whether they are collinear or not. Collinear मतलब और non-collinear का मतलब क्या होता है और collinear का मतलब होता है. When the points lie on the same line, then the points are collinear. Okay, तो यहाँ पर 1, 3, -1, -1, and in this question आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है plot these points and check whether they are collinear or not. ये points आपको plot करने हैं और फिर आपको ये बताना है कि whether these points are collinear or not. The horizontal line is the x-axis and your vertical line is the y-axis. And where these two lines meet, that is the origin. Or at the origin, the coordinates are 0 and 0. X is also 0, y is also 0. Now you have to plot these points. First, I am taking here positive sign 1, 2, and 3. And x-axis left hand side पर negative sign are 3. And on the upper side, there are positive sign, and downward there are negative sign. So first you have to plot these points 1 and 3. 1 is the x coordinate and 3 is the y coordinate, and both are the positive sign. So 1 and 3.
And the next one is minus 1, minus 1. Minus 1, x is minus 1, y is also minus 1. Okay. And this is your minus 1, minus 1. Okay. And the next one is minus 2 and minus 3. Minus 2 and minus 3. Because both are the negative sign. So it lies in the second quadrant. And with the help of scale, आपको scale की help लेके ये join करने हैं these points और आपको check करना है कि whether they are collinear or not. तो ये तीनों points क्या हैं? एक ही line के ऊपर क्या कर रहे हैं? lie कर रहे हैं. तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? Yes, these points are कोलिनियर. अगर ये एक लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते तो आप लिख देते नो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स. लेकिन ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ स्केल join all these points and see these points are collinear or not. Okay, one more question I am taking, and in this question you have to mention plot the following points and write the name of the figure so obtained. आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं which figure they are obtained. इनको प्लॉट करने से कौन सी फिगर ऑब्टेन होगी. I am writing the question also, you note down. Plot the following points. Plot the following points and write the name of figure. Okay. P coordinate, P के coordinate है -3,2 and Q के coordinates हैं -7, -3 and R के coordinate हैं points R के 6, -3 and S के coordinate हैं 2,2. Okay. First है -3,2. This is the question of your NCERT exemplar book. And Q के coordinate है -7, -3. R के coordinate है 6, -3 and S के coordinate है 2,2. Now you have to plot these points. First I have to draw the two perpendicular line. And this is the origin, and this is the horizontal line is x-axis and vertical line is y-axis, and this is your origin, and on the right hand side there are positive points and on the right hand side there are negative points. ओके यहाँ पर आपके पॉजिटिव साइन है ऊपर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यू हैव नेगेटिव साइन. यू हैव टू प्लॉट द नेगेटिव साइन. नाउ सी द फर्स्ट इज P के कोऑर्डिनेट है -3,2. इन विच क्वाड्रेंट P कोऑर्डिनेट लाई? X is -3, Y is +2. X is -3 and Y is +2. So it lies in the second quadrant. P के coordinate है -3,2. Okay. And Q के coordinate है -7, -3. Here X is also negative, Y is also negative. X is also negative and Y is also negative. So it lies in the third quadrant. Q के कोऑर्डिनेट है -7, -3.
नाउ आर के पॉइंट है 6, -3. 6 is positive and 3 is minus negative. 3 is negative, so it lies in the fourth quadrant. R lies in the fourth quadrant. And S is 2, 2. X is also positive, Y is also positive. Both are the positive sign. So by joining these points with the help of scale P, Q, R, S, when you join this figure, P को Q के साथ आपको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है, और Q के बाद R को ज्वाइन कर दो, और उसके बाद R के बाद S, एंड अगेन P के साथ S. obtained here. आपको कौन सी फिगर मिली? इट इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम. तो इस फिगर का आप नाम क्या देंगे? ट्रेपीजियम. अगर आपको एरिया फाइंड करना पड़ता है इसी फिगर का, तो हाउ यू विल फाइंड द एरिया? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ टू इट्स पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से अगर आपको जो फिगर ऑब्टेन्ड होती है, जो भी फिगर ऑब्टेन्ड होती है, जैसे यहाँ ट्रेपीजियम मिली है, तो इसका अगर आपको एरिया फाइंड करना पड़ जाता है, तो किस तरह से आप सम ऑफ द यहाँ पर किस तरह से लेंथ लेंगे और किस तरह से आप हाइट कैलकुलेट करेंगे. मैं पहले इसी क्वेश्चन में चलो आपको बता देती हूँ किस तरह से आप लेंथ काउंट करोगे. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम that is equal to half sum of two its parallel sides into height. How you will calculate the sum of two its parallel sides? इनकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस था वो -3, 2 था, और यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो -7, 3 था. तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना, आप ग्राफ के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा. ये डिस्टेंस है आपका -3 और ये डिस्टेंस है आपका यहाँ पर 2. यहाँ 3 और 2 टोटल डिस्टेंस ये वाला कितना हो गया आपका 5. यहाँ पर -3 और ये 2, तो टोटल डिस्टेंस इस तरह से काउंट नहीं करना -3 + 2. टोटल डिस्टेंस लेना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है. इधर 3 है लेफ्ट हैंड साइड में और इधर राइट में 2 है, तो 3 + 2 ये कितना हो गया 5 यूनिट. और यहाँ से कैलकुलेट करोगे, यहाँ आपका -7 है और यहाँ आपका 6 है, तो यहाँ पर 7 + 6 ये कितना हो गया आपका. ओके. और फिर आप हाइट काउंट करोगे. ये हाइट यहाँ पर जो पॉइंट था ये 2 पर था. ये पॉइंट कहाँ पर था? 2 पर. और ये कहाँ पर था आपका? -3 पर. तो ये 2 और 3 टोटल हाइट कितनी हो गई आपकी? 5 हो गई. तो अब आपको एरिया अगर फाइंड करना है, तो हाउ यू विल फाइंड द एरिया? हाफ सम ऑफ टू इट्स पैरेलल साइड. एक साइड 5 है और एक क्या है 30, और हाइट कितनी है आपकी? ये भी 5 है. तो किस तरह से एरिया फाइंड करोगे? हाफ इंटू 18 इंटू 5. 2 9 जा 18, तो एरिया कितना आ जाएगा 45 स्क्वायर मीटर. या यूनिट अगर नहीं दे रखी तो स्क्वायर यूनिट लिख दे, क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं है ना, तो आप सीधा इसको किसमें कन्वर्ट करोगे? यूनिट में. एक बार फिर से बताती हूँ कि कैसे आपको डिस्टेंस लेना है लेंथ का. ये पॉइंट जो था लेफ्ट हैंड साइड पर -3 और राइट हैंड साइड पर ये 2, तो टोटल लेंथ इसकी P और S की टोटल लेंथ कितनी हो गई? 3 + 2 5. और यहाँ पर जो Q और R की टोटल लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करोगे? ये पॉइंट आपका -7 था, इट मीन्स ये डिस्टेंस 7 हो गया, और ये डिस्टेंस आपका 6 पर था, तो 7 + 6 ये कितना हो गया डिस्टेंस आपका 13. और हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है? ये हाइट यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो आपकी 2 है, और अगेन ये आपकी कितनी है -3, तो इट मीन्स ये डिस्टेंस 3, 2 + 3 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 5. नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज इक्वल टू
half sum of two its parallel sides into height. तो पैरेलल साइड्स एक 5 है और एक 30 है, और इनटू हाइट कितनी है आपकी, ये आ जाएगा 18 into 5, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45 square unit. One more question I am taking of this type. When the 3 points are given and the fourth vertex, you have to find the figure. ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लो, जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करा रही हूँ. points A 5,3 and B के कोऑर्डिनेट है -2,3 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -4. are 3 vertices of a sphere. Are 3 vertices of a sphere. ये आपको 3 vertices स्क्वायर के दे रखे हैं. देने तो 4 चाहिए थे A B C D, लेकिन आपको C के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे ये मैं आपको बताती हूँ. प्लॉट दिस ऑफ ए स्क्वायर ABCD. उसके बाद लिखा है प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर. आपको ग्राफ पेपर यूज करना है इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि प्रॉपर रिजल्ट तभी निकलता है. एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स C. आपको जो C वर्टेक्स नहीं दे रखा था उसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्पलर नोटबुक का है. फर्स्ट आई एम ड्राइंग द परपेंडिकुलर लाइंस. दिस इज द x axis and this is y axis. Okay, now on the right hand side, positive sign are there, and on the negative sign on left hand side there are negative sign are here. Okay, ये स्टूडेंट ये गलती नहीं करना इसमें कि आप बच्चे जो हैं पॉइंट्स लिखते समय 0 के बाद यहाँ -1 आता है. इंटीजर्स लिखने आते हैं ना आपको, ये यहाँ ऐसे नहीं लिखते ना -1 -2 -3 -4 -5. और हमेशा राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव साइन आ दे. और यहाँ भी जब स्टार्ट करोगे 0 के बाद 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5. इस तरह से नहीं, हमेशा 0 के बाद इंटीजर अगला नेक्स्ट क्या होता है 1, और डाउनवर्ड में नेगेटिव साइन आती. Now plot these points and find the vertex of C. How you will find the vertex of C? Point A 5 and 3 both are the positive sign, so it lies in the first quadrant. So 5 and 3. A is 5, 3. Okay, and B is -2, x is negative and y coordinate is positive, so it lies in the second quadrant. Okay, and D is not given here, and C is not given here. D के coordinate है 5, -4. It means x is positive. यहाँ पर x पॉजिटिव है और y क्या है आपका नेगेटिव. x is positive and y is negative. 5 and -4.
Now how you will find the C coordinate? By joining all these points A, B, C, D. हमेशा ये टेकन इन ऑर्डर भी रहना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अगर ए है तो ए बी ऐसे भी ले सकते हो, ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी. हमेशा ये क्या होते हैं, टेकन इन ऑर्डर लेते हैं. तो हमने इसको कैसे ज्वाइन करना है, पहले ए को मैंने बी के साथ ज्वाइन कर दिया और विद द हेल्प ऑफ स्केल यू विल यूज. बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए ये आपका, ठीक है. और फिर उसके बाद ए के साथ मैंने डी भी ज्वाइन कर दिया. तो वेयर द सी पॉइंट लाई, सी पॉइंट आपका कहाँ लाई करेगा, ये यहां पर 5 और -4 था तो इट लाइज, जब आप इसको ज्वाइन करोगे इट मींस आपका जो सी कोऑर्डिनेट होगा वो कहां पर लाई करेगा, एक्स तो होगा -2 और y क्या होगा आपका -4. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C. तो हाउ यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C? बाय जॉइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो लाइन है वो इस तरफ से राइट हैंड साइड पर आती हुई यहां से जब आप ज्वाइन करोगे तो ये -2 वाली लाइन में आती हुई, तो आपका x कोऑर्डिनेट तो -2 होगा और y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, -4. तो आपका ये स्क्वायर फिगर थी. स्क्वायर आपको ऑलरेडी इट इज गिवन दैट दिस फिगर इज द स्क्वायर. तो आपको अगर इस क्वेश्चन में ये भी कह दिया जाता कि स्क्वायर फिगर है तो एरिया फाइंड करो. अब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो आप पहले मेजर करके देखो. ये डिस्टेंस -2, इट मींस ये डिस्टेंस आपका 2 है और इधर कितना है 5. 2 + 5 ये डिस्टेंस आपका हो गया 7. और ये वाला डिस्टेंस हम मेजर करके देखो, ऊपर ये कितना डिस्टेंस है 3 और ये नीचे कितना है 4. तो ये भी आपका कितना हो गया, 4 + 3 7. अब ये वाला मेजर करो यहां से लेकर यहां तक, ये आपका 5 है और ये आपका 2 है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया 7. और ये वाला मेजर करो, ये भी आपका 3 है और ये आपका कितना है 4. तो टोटल ये भी डिस्टेंस कितना हो गया 7. अब आपको मेजर करना तो आ गया डिस्टेंस. अगर आपको स्क्वायर का इस क्वेश्चन में एरिया भी निकालना आ जाता तो हाउ यू विल फाइंड द एरिया साइड इनटू साइड, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो साइड एक आपकी 7 है तो दूसरी भी क्या आ जाएगी 7. 7 × 7 इट इज इक्वल टू 49 स्क्वायर यूनिट. क्योंकि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो यू विल राइट द यूनिट. और नाउ आई फाइंड द वर्टेक्स C. कैसे फाइंड किया मैंने वर्टेक्स C? मैंने C वर्टेक्स बाय ज्वाइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स. क्योंकि ये लाइन जब स्ट्रेट आएगी तो ये -2 वाली लाइन में ही आएगी और ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगी ये आपकी यहाँ पर -4 था y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा -4. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. How you will find the, when 3 vertex are given in the question, how you will find the third vertex, when the 3 vertex are given in a sphere, how you will find the third vertex. Now one more question I am taking. Yes, students, one more question I am taking. The question is, note down the question in your notebook. Draw the quadrilateral, draw the
quadrilateral, draw the quadrilateral whose vertices are first है 1,1 and the second one is 2,4 and the third one is 8,4 and at the last it is given 10,1. तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं प्लॉट करने हैं और आपको ये बताना है कि ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद लास्ट में आपको ये बताना है ड्रॉ नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इन दिस केस. ओके, आपको इस क्वाड्रिलेटरल का नाम भी बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस फॉर्म का बना है. तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन. And here I am taking the positive sign क्योंकि यहाँ पर 10 तक दे रखा है. I will plot 10 points on the right hand side. Okay. Now plot these points one by one. First one is 1,1. This is your first point. 1 and 1. X is also positive, Y is also positive. And the next one is 2 and 4. 2 and 4. And the next one is 8 and 4. Your X is 8 and Y is 4. And the last is 10 and 1. And by joining these points with the help of scale, आपने इसको फ्री हैंड से मूव नहीं करना, आपने स्केल की हेल्प से इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है. Now which figure you obtained here? आपको कौन सी फिगर मिली है? By seeing this figure, you see this is the trapezium. Okay. So इस तरह के questions I have sent one assignment also related to this question. You solve that questions and some objective type questions I have sent the assignment today. You will solve that assignment. And अगर आपको इस फिगर का एरिया निकालने के लिए क्या दिया जाता है, तो हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. मैंने अभी क्वेश्चन में तो सिर्फ ये कहा था कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका नाम क्या है, ट्रेपेजियम. नाउ हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. नाउ यू फाइंड द डिस्टेंस. आपको डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है, 1 से लेकर यहाँ 10 तक. तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना काउंट हो जाएगा आपका, 9 है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं था, ज्वाइन नहीं था. और उसके बाद हाइट कितना हो जाएगा, ये 1 से स्टार्ट है ना, 1 से स्टार्ट है ना, और ये 4 तक एंड है. तो हाइट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 1 2 and 3. टोटल हाइट कितना है, 3. तो हाउ यू विल फाइंड द एरिया, हाफ सम ऑफ टू इट्स पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स आपकी कितनी है, ये तो आपका 9 था, और ये कितना है, ये यहाँ पर पॉइंट कितना था, 2 से स्टार्ट था, और यहाँ पर लास्ट में ये वाला जो पॉइंट था वो आपका कितना था, 8 और 4. तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, तो इसके बीच का डिस्टेंस, 2 और 8 के बीच का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल डिस्टेंस ये वाला कितना है आपका, 6. तो हाफ इंटू 9 + 6 इंटू ये जो हाइट था वो कितना था, 3 था.
So you will find the area of this question. How you will calculate the distance between the line segment. ये यहाँ से start था 1 से और 10 पर end था. So total distance is 10 here. और ये 2 से start था, यहाँ 8 पर end था, तो total distance is 6 here. और height जो है यहाँ 1 से start होकर 4 तक थी, तो total distance is 3 here. So you will find the area of this figure. Area of trapezium equal to half sum of two its parallel sides into height. You will calculate this yourself. Now, if you have any doubt regarding this topic, coordinate geometry, then you can ask. Yes, students, any doubt? Then you can raise your hand.